we call it the Pink October because this is Breast Cancer Awareness Month, Yes, and that we was the reason I just wanted you to talk about it. Yeah. excellent because we celebrate this month. We don't observe it. We celebrate this month, and we celebrate because we want to raise awareness about breast cancer. And I nowadays, you know how many of us are getting affected by the disease. Yes. How many of us have actually fought the disease and come out of it, and how many of us are actually currently going on, currently are on treatment, are having our daily issues. Now, why Yes. why do you think it is, the first thing that why it is important to talk about breast cancer is that it is the most common cancer which affects women in the Female. world. All over Yes. the world, that's the most common cancer. Not just world, it is also the most common cancer in India. When we put both Yes. the population, men population and the women population together, the number of women who are suffering with breast cancer is much higher than any other cancer. Yes. Second, why we need to know more about the cancer is we if we are aware that a lump in the breast can be cancer, we will present with the lump to the doctor sooner. हम जितना जल्दी पहुंचेंगे उतना अर्ली स्टेज में हम उसको डायग्नोस कर पाएंगे, उतना Yes. कम ट्रीटमेंट लगेगा और उतनी जल्दी ठीक होके हम वापस वापिस अपने आ अपने सकते हैं. Yes. सोसाइटी में, अपने अपने काम पे, अपने जो भी हम अपनी जिंदगी में कर Whatever. रहे हैं उस पे हम वापस जा सकते हैं. ये बहुत Yes. जरूरी है कि जितना जल्दी हमको पता चले. मैं इसका ना आपको एक एग्जांपल देके बताता हूँ. मैं पहले अभी मैं एक प्राइवेट हॉस्पिटल में काम करता हूँ. Yes. इससे पहले मैं एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज अ कैंसर सर्जन काम करता था. इस सर, कुछ बीच में मैं डॉक्टर मुझे आपको डिस्टर्ब करना पड़ेगा बीच में. मैंने आपका यस यस इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया. ओके सो प्लीज आई गो अहेड. थिंक बेटर यू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ. ऑलराइट, या. आई विल डू दैट, आई विल डू दैट. मेरा नाम डॉक्टर गर्वित चित्कारा है. मैं नानावटी मैक्स इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर केयर में सीनियर कंसल्टेंट इन ब्रेस्ट सर्जिकल ऑन्कोलॉजी एंड ऑन्कोप्लास्टी के पोस्ट पे हूँ. डिपार्टमेंट में. और यस. I या. head the Department of Breast Surgery there, and what we do is basically we try and treat everyone who comes to our clinic for any breast issues, whether it is cancer or non-cancerous. Before this, I have worked at Tata Memorial Hospital for good 9 to 10 years, and I started my training there in cancer in Tata Memorial Hospital. But then I went on to become a faculty there, and when I left Tata for about 3 years back, I was an associate professor, Yes. and And I know I you have for almost 1.5 years. 1.5 years now. Yes, So, it's son. and I think our paths crossed because of the disease that we are talking about today, Yes. and Yes. that that's how we met each other, and that's how we've been discussing about how to, and that's why I said excellent initiative. This is something that all people who have been affected by the disease or people who deal with this disease should take up this opportunity of this month to talk about the disease, because the more you talk Yes. about it, more people become aware, easier it will be for people who are not aware about this cancer. They will come out and discuss about their disease earlier. Yeah, because with me, what happened कि मैंने भी कभी I used to talk about breast cancer before I got this, but मेरा क्या हुआ था, I was not knowing how to detect it, कैसे diagnose होता है, कैसे खुद को check किया जाता है. And I also I was at stage 3 and 4 के बीच में. When I was diagnosed, I was oligometastatic. तक पहुंच चुकी थी मैं. It was like मेरे जैसे इंसान को who is healthy, who is meeting people, who know everything about, मतलब जैसे हम हेल्थ का अपना ख्याल रखती हूँ मैं, सब कुछ करने के बाद अगर मेरे जैसे इंसान को स्टेज 4 या स्टेज 4 and 3 के बीच पता चलता है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू टॉक अबाउट इट, सो दैट पीपल जो रिमोट एरियाज में हैं, जिनको फैसिलिटीज नहीं है, दोज हु आर नॉट वेल एजुकेटेड, they should know that there is something. If something unusual happening to you, आपके body में कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो you have to check it, especially all the females. So Absolutely, completely agree with you. यही चीज, जैसे मैं आपको एक थोड़ा एग्जांपल देके बोलता हूँ आपको. आपने अपनी जो स्टोरी शेयर की उसमें
you told me the and we know about it कि स्टेज 3 और 4 के बीच का कैंसर एंड हमारे से हमेशा गलती कहाँ होती है हाँ, कि this is what I हम wanted to talk about. हम ब्रेस्ट एग्जामिन कर लेते हैं Yes. हम ड्यूरिंग नहाते धोते कभी ना कभी हम अपने ब्रेस्ट को टच We, करके हमको हाँ, पता चल because जाता है कि लंप मेरे है साथ भी ठीक है जैसे हुआ था, I was finding कि यहाँ पे कुछ एक lump है, but I was जी taking it very easy क्योंकि वहाँ pain नहीं था, एग्जैक्टली and there was दिस no इज द swelling, there was no दिस marks. Yes. this is the most important thing that you have said. Painless lump in the breast is more likely to be cancer than a painful lump. जो चीज दर्द करती है उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा है और जो चीज दर्द करती है आप उसको वैसे ही डॉक्टर को दिखाने जल्दी पहुंच जाओगे जो Yes. चीज दर्द नहीं करती उसमें स्पेशली एंड आई एम नॉट बीइंग अ genderist or sexist when I say this especially women they take more time because they have more responsibilities on them Yes. especially तो और अभी अभी फेस्टिवल का सीजन चल रहा है तो यही होगा गणपति के बाद जाके दिखा दूंगी मैं आगे नवरात्रों के बाद जाऊंगी. जाके दिखा दूंगी बच्चों के एग्जाम है या मेरे Yes. हस्बैंड का कोई प्रमोशन ड्यू है या कहीं वो ट्रैवल करने वाले हैं ये सब के बाद हम जाके डॉक्टर को खुद को दिखाते हैं कि ये दिखाएंगे. ब्रेस्ट लंप है Yes. कब या कब बिकॉज फीमेल्स मेरे अपने को आप को तो अपने 1.5 साल लास्ट से में दिख रहा रखती हैं. है हाँ, एग्जैक्टली सब फीमेल अपने आप लोग को इट्स अ हमेशा वेरी आखिर में कॉमन थिंग रखती है. women will Yes. always keep because they have so many responsibilities they will always keep themselves last when it comes to the order of family हाँ. कि मेरी हेल्थ सबसे बाद में सबसे पहले आप बाकियों को देखो एंड द थिंग इज इसके हम सबसे पहले ये नहीं सोचते, वर्स्ट नहीं सोचते हैं. जैसे मुझे व्हेन आई वाज हैविंग दिस लम्प तो मुझे लगा कैंसर थोड़ी ना हो सकता है, बट हुआ वही. सो इट्स गुड टू बी पॉजिटिव, बट yes अगर आपको लगता है कि एक बार टेस्ट कराना बहुत जरूरी है. बिकॉज जब मैंने डायग्नोस हुआ तब भी मुझे यकीन नहीं हो रहा था, बिकॉज इट वॉज नॉट दैट पेनफुल भी नहीं था, बट द ओनली थिंग इज इसके मुझे वीकनेस आ गई थी. आई वॉज फीलिंग वेरी वीक, आई यूज टू फील लिथार्जिक, मैं ज्यादा सो रही थी. सो अगर कोई भी ऐसा सिम्टम आता है बॉडी में तो आपको चेक कराना जरूरी है. दैट्स व्हाट आई बिल्कुल थिंक. सो आपको जैसे आपने आप स्टेज 3 के तक पहुंच गए स्टेज 4 के अर्ली तक पहुंच गए इस वजह से आपको बॉडी में चेंजेस आने लगे तब आपको समझ में आया कि ये चीज सीरियस यस, हो सकती है हाँ, ये चीजें पर हो सकती. हम अब जो बाकी लोग हैं उनके लिए तो ये एडवाइस रहेगा जब आपको पहली बार लंप मिले या चाहे वो पेनफुल है चाहे वो पेनलेस है आप उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश मत करो कि हाँ. ये हो सकता है या ये नहीं हो सकता ये मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ बहुत बार जैसे कोई दादी नानी कोई आएंगे ना एग्जाम अपने एग्जामिनेशन के लिए तो बोलेंगे ये ना मेरे ब्रेस्ट में लंप है पर मेरा छोटा पोता है या पोती है वो मेरे को खेलते हुए उसने ब्रेस्ट पे मेरे को लात लग गई या उन्होंने हाँ. टांग मार दी इस वजह से मेरे को ये गांठ हो गई नो. तो उनको मेरे को बार बार ये बताना पड़ता है कि भगवान का रूप होते हैं बच्चे हाँ. उसने पैर मार के ये बताया कि आप जाके डॉक्टर को दिखा लो ये यस, पहले से था ये तो पहले से था. ये यस. पहले से था आप ध्यान नहीं दे रहे थे पता बातों का जो इम्पोर्टेंट बात ये है जितना छोटा लंप हम पकड़ते हैं उतनी अर्ली स्टेज में हम इसको डायग्नोस कर सकते हैं और जितनी अर्ली स्टेज में हम डायग्नोस करते हैं उतना ही अच्छा सर्वाइवल है और और उतने ही कम ट्रीटमेंट ऑप्शंस लगते हैं बहुत सारे यस, ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल है आप फॉर मानोगे मी नहीं इट वाज 60 वेरी अग्रेसिव ट्रीटमेंट. यस मतलब वो एक हिंदी में जैसे बोलते हैं ना कि मेरी पूरी जान निकल चुकी है. इट्स लाइक मैं जो जितना हेल्दी थी मैं उतना आज अपने आप को उतना ज्यादा वीक फील करती हूँ. शायद मैंने इससे पहले स्टेज पे पकड़ा होता या सेकंड स्टेज पे तो आज मैं बैक टू वर्क होती. डेफिनेटली मैं ऐसे देखने में लोगों को ऐसा लगता होगा कि सुंदर दिख रही है, प्रेजेंटेबल दिख रही है, बाहर जाती है, काम करती है, बट जो डिफिकल्टीज आज मैं फेस करती हूँ उससे मुझे पता चलता है कि व्हाट आई यूज टू बी बिफोर कैंसर, व्हाट आई एम टुडे. सो अगर मैंने शायद जो मेरा रिग्रेट है, सो आई डोंट वांट अदर पीपल टू रिग्रेट कि शायद मैंने स्टेज 1 पे पकड़ लिया होता है या मैंने स्टेज 2 पे भी देख लिया होता है या 3 पर भी. सो एटलीस्ट मेरा इतना अग्रेसिव ट्रीटमेंट नहीं होता, शायद मुझे इतनी डिफिकल्टीज फेस नहीं करनी पड़ती. आई वॉज रनिंग अराउंड. देर वॉज अ टाइम जब मुझे लग रहा था कि शायद लाइफ नहीं बचेगी, शायद मैं वापस नहीं आऊंगी, बट टच वुड देयर वर गुड पीपल helping me out with my surgeries, post surgery infection, and today I'm sitting with you. In fact मैं last week भी आपसे मिलके गई. So हम हमारी लाइफ में बहुत सारे
कैंसर के बाद भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं, कैंसर के दौरान होते हैं. सो वी नीड टू मीट डॉक्टर्स सबसे पहले, और उससे सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि टेस्ट कैसे किया जाए एंड विच आर द ऑप्शंस अवेलेबल. वेरी गुड. तो वो तो यू. ये बहुत अच्छा सवाल है, इसलिए मैंने वेरी गुड बोला. और जो देर आर थ्री का सवाल है, इसलिए मैंने वेरी गुड बोला. और जो देर आर थ्री काइंड ऑफ टेस्ट दैट यू कैन डू. 25 साल की उम्र में जो लोग 25 के हो गए हैं, उन्हें हर महीने अपना खुद का एग्जामिनेशन, इसको बोलते हैं सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, शॉर्ट फॉर्म इज SBE, सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करना चाहिए. सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन महीने में एक ही बार करना है, किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना है, खुद अपना समय निकालना है. स्पेशली कभी आप नहाने जा रहे हैं, उस समय पे आप अपने चेक ब्रेस्ट कर को खुद सकते हैं. चेक कर सकते हैं. इसके स्टेप्स, इसके वीडियोस बहुत जगह अवेलेबल है. मेरी एक वेबसाइट है, हाँ. उस पे भी एक वीडियो अवेलेबल है. कोई भी जाके वहां पे देख सकता है, यस. उसको डाउनलोड कर सकता है, उसको सीख सकता है. 25 पे आप सेल्फ ब्रेस्ट इस एग्जामिनेशन से ना बहुत बार डायग्नोसिस मुश्किल होता है, बट इस एग्जामिनेशन से आप ब्रेस्ट अवेयर हो जाते हो. आपको पता है कि आपकी नॉर्मल ब्रेस्ट कैसे फील करती है. तो जब भी कोई चेंज आएगा, तब आप उसको पकड़ पाओगे. यस. अगर हाँ. आपको फर्स्ट थिंग्स. नॉर्मल की अवेयरनेस नहीं है, तो नॉर्मल की अवेयरनेस डिफिकल्ट हो यस. जाती है. ठीक है. सो यस. दैट इज फर्स्ट थिंग. सेकंड होता है 35 इयर्स के होते ही आपको क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, मतलब साल में एक बार डॉक्टर को, या मतलब जिसके साथ भी आप कंफर्टेबल है, जो एक हेल्थ केयर वर्कर है, उसको दिखाना जरूरी है. वो एग्जामिन कर ले आपकी ब्रेस्ट को. प्रेफरेबली एक ब्रेस्ट सर्जन को दिखाइए, बिकॉज वो लोग सिर्फ इसी के साथ डील तो करते हैं, तो दे आर एबल टू पिक अप इवन वेरी वेरी स्मॉल चेंजेस. तो 35 की उम्र से शुरू कीजिए और हर साल क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कीजिए. एट द एज ऑफ 45 और 40, डिपेंडिंग ऑन आपकी फैमिली हिस्ट्री कैसी है, आपको ब्रेस्ट कैंसर रिस्क कैसा है, यू कैन स्टार्ट डूइंग बाय एनियल, मतलब 2 साल में एक बार मैमोग्राम. ये 2 साल ओके. में एक बार तब करो जब आप बाकी के 2 टेस्ट कंटिन्यूअसली कर रहे हो. कर रहे सेल्फ हो ब्रेस्ट तो. एग्जामिनेशन एवरी मंथ, क्लिनिकल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन एवरी ईयर, और मैमोग्राम, स्क्रीनिंग मैमोग्राम 2 साल में एक बार. 25, 35 एंड 45. इट्स अच्छा. इजी टू रिमेम्बर. व्हाट अबाउट सोनोग्राफी, जो हम लोग तो सोनोग्राफी भी करवाते हैं कुछ लोग. सोनोग्राफी का एक प्रॉब्लम है. सोनोग्राफी ना बहुत ही सब्जेक्टिव टेस्ट है. ओके. जो जो डॉक्टर वो टेस्ट कर रहा है, हम्म. उस पे डिपेंड करता है कि वो, उसको ब्रेस्ट में लंप मिला और उसने चेक किया और उसको लगा कि ये मुझे लग रहा है कि ये कैंसर जैसा दिख रहा है. ओके. उसको ये लग भी सकता है. सो देयर इज अ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्वड इन दिस. ओके. Someone who is doing breast ultrasounds on a very regular basis will be able to pick it up. ओके. हाँ. Someone who is a general radiologist may not be able to pick it up. So हाँ. In my case, my doctor was very senior who was doing this checkup for me. scanning, So the yes. scanning for me. So the minute she put this here, she said it's a cancer. So I was very shocked. So I said, नहीं हो नहीं सकता. Then she said, go for mammogram. So जैसे ही हमने वो टेस्ट किया, she said yes it is there. And then फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर जब मैं डॉक्टर मंदार से मिली, he said we have to go for biopsy. The minute we got the biopsy report, it was clear कि this is cancer. So ऐसे उसको completely find out किया. अब मेरा एक आपके साथ क्वेश्चन ये है कि there are some people they have lumps जिसका कुछ भी, there is no cancer at all. What they should do? Like मेरी फैमिली तो में कुछ लोग हैं जिनको लम्प्स हैं. ब्रेस्ट में लम्प्स So है. हाँ. देखिए, Yes. सबसे So पहले तो ये जो ब्रेस्ट लम्प्स हमको नॉर्मली ड्यूरिंग द पीरियड बनते हैं, कुछ डिसॉल्व हो जाते हैं, जो कि सिस्ट भी हो सकती है या फिर हार्ड सॉलिड लंप भी हो सकते हैं. जब हम अल्ट्रासाउंड या मैमोग्राम करते हैं, तो उसकी जो शैडोज होती है या उसके जो सिग्नेचर पॉइंट, सिग्निफिकेंट पॉइंट्स होते हैं, उसके बेसिस पे हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि लंप को बायोप्सी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए. अगर वो लंप साइज में इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, आपने एक बार उसको डॉक्टर को दिखा लिया है, yes. और वो 2 सेंटीमीटर से छोटे हैं, उसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गया है एक बार, और हमने ये डिसाइड कर लिया कि ये बेनाइन है, ये नॉन कैंसरस है, तो उसको ऑब्जर्व किया जा सकता है. ऑब्जर्वेशन का मतलब ये नहीं है कि हम उसके बारे में भूल गए. हाँ, जब we हम have to अपना keep एनुअल it चेकअप in कर रहे mind कि हैं, है कुछ है. yes, जब there हम is एनुअल something. चेकअप कर रहे हैं, तो उसमें देख रहे हैं कि उसका साइज इंक्रीज तो नहीं हुआ, उसका नेचर चेंज तो नहीं हुआ, उसकी ब्लड सप्लाई बढ़ गई या कम हो गई, ऐसा तो नहीं हुआ. तो दीज थिंग्स वी अच्छा. हैव टू कीप इन माइंड. हाँ. So One more thing.
Yes. जैसे मेरी फैमिली में किसी की हिस्ट्री थी कैंसर की, Yes. मगर वो मुझे नहीं पता था. सो अगर हमारी मम्मी के साइड या डैडी के साइड किसी को भी कैंसर है, सो व्हाट आर द चांसेस कि हमें भी आ सकता है. So, ये जेनेटिक, जो मेरा तो जो हमने gen- डायग्नोज किया विथ मी, यू हैव चेक्ड इट, मेरा yes. डायग्नोज किया तो इट वाज नॉट जेनेटिक, अननोन Yes. रीजन. सो जिनकी फैमिली में किसी को कैंसर है, सो हाउ, व्हाट आर तो द ये ना चांसेस? एक ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है समझने के लिए कि एक तो जितनी बार भी हमको हेरिडेटरी कैंसर्स होते हैं ना, जो फैमिली में चल रहे कैंसर, इसको फेमिलियल कैंसर्स बोलते हैं, ये होने के चांसेस 10% ही होते हैं. मतलब मैं अगर 100 10% कैंसर के पेशेंट देख रहा हूँ तो उसमें से 10% पेशेंट्स ऐसे होंगे जो फेमिलियल कैंसर्स की वजह से होंगे. यस. ठीक है. बाकी के 90% स्पोराडिक होते हैं, जैसे आपको हुआ, चाहे फैमिली यस. हिस्ट्री है चाहे नहीं है, पर हुआ कैंसर और हमने यस. जेनेटिक टेस्ट किया तो उसमें हमको मिला कि कैंसर जेनेटिक नहीं था, स्पोराडिक कैंसर था. स्पोराडिक यस. का हाँ, मतलब हो कि बस है, कोई रीजन नहीं है, बस कोई ठीक रीजन है. नहीं है, अननोन यस. रीजन. ओके, फाइन. नाउ जिनको फैमिली हिस्ट्री है, फॉर्चुनेटली आज के दिन में कुछ ऐसे ब्लड टेस्ट अवेलेबल है जो आपकी फैमिली हिस्ट्री के बेसिस पे आप टेस्ट कर सकते हैं. हाँ, एंड आप व्हाट आर दोस वो टेस्ट? डॉक्टर, दोज आर कॉल्ड बेसिकली कैंसर जीन पैनल्स होते हैं, जिसमें हम डॉक्टर प्रॉपरली जेनेटिक काउंसलिंग करने के बाद आपको वो टेस्ट एडवाइस करते हैं. ओके. वो टेस्ट करने के बाद आपको पता चल जाता है कि आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आपको ऐसा जेनेटिक म्यूटेशन आपकी फैमिली में मिला है जिसकी वजह से आपको कैंसर हो सकता है फ्यूचर में, हाँ, और एक सर्टन नंबर के साथ वो बताते हैं. ओके. जैसे फॉर सो एग्जांपल वो टेस्ट मोस्ट, कहीं ना कहीं आपको बता सकता है कि आपको आ यस, कि सकता है, आपको रिस्क है. रिस्क रिस्क है. है. ओके. इसका सो उसमें एग्जांपल मैं कितने आपको परसेंट रिस्क हमें पता चल जाता है? 40-50% वो रिस्क, ऐसे कुछ आता है यस, वो? एक जेनेटिक, जैसे मोस्ट कॉमन जीन जो हमको मिलती है ब्रेस्ट कैंसर से एसोसिएटेड, उसको बोलते हैं BRCA1 और BRCA2. ये दो यस. जीन्स है. यस. BRCA1 में हिस्ट्री, जो रिस्क ऑफ ब्रेस्ट कैंसर है वो 60 to 80% होता है ओके. इन अ लाइफ टाइम, वेयर लाइफ टाइम इज डिफाइंड एज 1 to 80 years. यस. मतलब 80 साल की उम्र तक आपको 60 से 80% चांस है कि ब्रेस्ट में कैंसर आ सकता है. सिमिलरली उसी जीन की वजह से 40 to 60% चांस है कि ओवरी में कैंसर आ सकता है. यस. तो इसका एग्जाम्पल मैं आपको एक हॉलीवुड की एक्ट्रेस हैं, एंजेलिना जोली. यस. उनकी मदर को कैंसर डायग्नोस हुआ और यस. उन्होंने अपना टेस्ट कराया और वो ब्राका पॉजिटिव आई. तो ओके. उन्होंने अब बहुत ऑप्शंस होते हैं कि आप ब्राका पॉजिटिव आ गए तो आप क्या करोगे. आप या क्या तो आप करो? सर्वेलेंस करोगे, जिसमें आप इंस्टेड ऑफ 1 year 2 years के गैप पे हम 6 महीने में उनको चेक करते हैं, ओके. ताकि कैंसर आए तो जल्दी पकड़ा जाए, हाँ. अर्ली स्टेज डायग्नोसिस हो जाए ओके. एंड लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन ना बने. हाँ. या फिर हम प्रोफाइलैक्टिक सर्जरीज एडवाइस, इसको प्रोफाइलैक्टिक नहीं, रिस्क रिडक्शन सर्जरीज बोलते हैं, यस. जिसमें जो दोनों ब्रेस्ट निकाल एंजेलिना जोली ने किया हुआ किया है, है. शी डिड दैट. उन्होंने यस. दोनों यस. ब्रेस्ट निकाली और रिकंस्ट्रक्ट करवाई हैं और दोनों यस. ओवरीज निकाली है. सो दैट वेज उन्होंने अपना कैंसर का रिस्क रिडक्शन कर दिया है बिल्कुल. ओके. तो ये बट शी मस्ट टेस्ट हैव टेकन अ लॉट ऑफ रिस्क. बट ये उनका काफी ज्यादा सर्जरी से जाना पड़ा. इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू कैंसर, यस, शी वेंट थ्रू सर्टेन सर्जरीज. डेफिनेटली वो थोड़ी सी कम पेनफुल रही होंगी. आफ्टर कैंसर, इफ यू रिमूव योर ब्रेस्ट, दैट इज मोर पेनफुल. rather than you are a healthy person and removing it is healing better होती है उनकी, मे बी. बट यस. नाउ इंडिया में ये ऑब्वियसली ऑप्शन आप कोई नहीं, इस ऑप्शन पे इंडिया में कोई नहीं जाता बहुत मोस्टली. ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बहुत हाँ. लोग जाते हैं. हाँ, क्योंकि हमारी ऐसे. प्रैक्टिस में भी कुछ लोग होते हैं जो पॉजिटिव थिंकिंग अगर ऐसा सोच लेते हैं. हाँ. एक्चुअली हम लोग ना बहुत कुछ ऊपर वाले पे छोड़ देते हैं. हाँ. यस, इंडिया में हम बहुत कुछ हम होगा बहुत तो कुछ ऊपर देखा वाले जाएगा. होगा तो देख लेंगे. पर अब बहुत प्रैक्टिकल थिंकिंग, बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग लोग आते हैं जो खुद से बोलते हैं कि मेरी फैमिली हिस्ट्री है और आई मेरे जस्ट को वांट टू रिमूव ये इट. आप प्लीज इसको चेक करिए पहले. तो हम लोग टेस्ट करते हैं, फिर आते हैं, तो फिर उनको एडवाइस किया जाता है कि देखिए आपकी ये सर्टेन एज पे इतनी रिस्क हो जाएगी एंड यू शुड गो थ्रू दीज, ईदर डू एक्टिव सर्वेलेंस और डू सर्जरी, एंड सम ऑफ देम हैव चोजन सर्जरी. तो कुछ लोग ओके. एक्टिव सर्वेलेंस पे है. गुड नंबर ऑफ पीपल, लाइक यू करेक्टली सेड, आर ऑन एक्टिव सर्वेलेंस, जो वो चेकअप करा रहे टाइम टू हाँ, टाइम. जैसे अब मेरा कैसे, मेरा एक एक हो चुका, लाइक
आज तो मैं आज की डेट में मैं हूँ रिमिशन, यू कैन से, हाँ, यस आई एम Yes, एट रिमिशन। yes, you are बट in remission. मेरे चांसेस हैं कि मुझे दोबारा कहीं कुछ आ सकता है। दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग, वी कीप चेकिंग Yes, एवरी 2 months 3 months, एंड वी हैव टू कीप चेकिंग जब तक मैं जिंदा yes. हूँ। डेफिनेटली वैसे ही करना पड़ेगा, हाँ। Hopefully, it's a long, long time. नहीं, अब तो मैं पहले से बहुत Yes, बेटर हूँ। that's what. इसको सो पॉजिटिव तरीके से ही देखना बहुत हाँ, जरूरी है. सो लेट्स टॉक अबाउट हम और क्या बात कर सकते हैं मैं इसी बारे में कि आपसे पूछता हूँ, आप अपनी जर्नी के बारे में बताइए. मतलब मेरी आप जर्नी, डायग्नोस हुए वहां तक आपने हाँ, बताया. नहीं, उसके लेकिन बाद आपको आपको मेरी जर्नी आपको जब पता चली जब मैं ऑलरेडी सर्जरी करवा चुकी थी, करवा चुके थे. एंड यस, आई यस. वाज गोइंग थ्रू अ कॉम्प्लिकेशन। बेसिकली मैंने मुझे जब ये डायग्नोस हुआ उसके बाद में सबसे पहले मैं डॉक्टर मंदार से मिली। ही द मिनट ही सॉ मी ही सेड कि तुम्हें तो कैंसर हो ही नहीं सकता, डोंट वरी, विल डू अ बायोप्सी। Then the minute we checked it, he said कि we have to go for chemotherapy. Next day मैं कीमो करवा रही थी। फिर मेरा TCHP मैंने लिया 6 कीमोस, एंड देन मास्टेक्टमी, कंप्लीट ब्रेस्ट निकाल के, और फिर उसको रिकंस्ट्रक्ट किया गया। देन उसके बाद मेरा TDM 1 स्टार्ट हुआ। TDM के बाद मेरा थोड़ा सा आई स्टार्टेड गेटिंग फीवर। तो जैसे मुझे फीवर आने लगा एंड आई वाज लाइक, मैं शायद मुझे ऐसा लगा, कभी कभी क्या होता है कि जो कैंसर से गुजर रहे होते हैं वो कई बार लोगों पर डाउट करने लग जाते हैं। उनको लगता है कि शायद मेरा इलाज नहीं हो रहा है, शायद कुछ तो हो गया। बिकॉज मेरे जैसा इंसान, आई एम अ परफेक्शनिस्ट, मुझे हर चीज एकदम परफेक्ट चाहिए। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि शायद एक नेक्स्ट ओपिनियन लिया जाए। सो आई केम टू यू एंड आई केम टू डॉक्टर मुजम्मिल। सो बोथ वर ट्रीटिंग मी लाइक एनीथिंग, बट उस बीच ये नहीं पता चल रहा था कि मुझे रोज फीवर क्यों आता है। बिकॉज द मिनट यू चेक, यू सेड कि यहाँ कुछ है, एंड देन फिर यू टेल मी कि कैसे हमने वो इन्फेक्शन निकाला एंड एवरीथिंग। तो तो वो तो बेसिकली आपने, जब 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 भी हम ब्रेस्ट की सर्जरी करते हैं, हम्म, तो सिरोमा फॉर्मेशन हाँ, एक्जिला वो में सबको होता है, फ्लूइड फॉर्मेशन नॉर्मल है, सबको होता है. सभी को होता है। जब हम किसी को सिरोमा अगर रह गया थोड़ा सा भी और बाद में आप कीमो ले रहे हो, जब आप हम्म, कीमो ले रहे हो या कोई भी ऐसा साथ प्रोडक्ट में ले रहे हो रेडिएशन भी जिसमें, चल रहा था मेरा, हाँ, यस, और रेडिएशन कीमो चले तो अपनी रेडिएशन। इम्यूनिटी कम हो जाती है. हाँ, जब यस। इम्यूनिटी कम होती है तो वो सिरोमा एक हाई प्रोटीन फ्लूइड है और वो इन्फेक्ट हो जाता है बहुत हम्म, जल्दी. तो वो हम्म, इन्फेक्ट हो गया था जब आप हमारे पास आए थे. तो हाँ, सही। बहुत ऑब्वियसली वो नजर आ रहा था, तो हमने उसको एग्जामिन किया, उसमें, एक छोटा सा प्रोसीजर किया और उसके बाद उसको ड्रेन कर दिया. हाँ, एक बार और ट्रेन वो किया फिर आ गया। फिर वापस आ गया था और फिर हमने एक परमानेंट थोड़ा लंबे समय के लिए ड्रेन डाल के रखी ताकि वो एस्पिरेट यस, वो इनफैक्ट अंदर मुझे अभी कलेक्ट ही तक, नहीं हो पाए. हाँ, इनफैक्ट मुझे अभी तक याद है, एक बार वो ड्रेन यहाँ पर लगा हुआ था एंड आई वाज गेटिंग रेडी टू गो फॉर अ प्रीमियर, आप एंड एक प्रीमियर के लिए भी आई गए मेड थे. अ कॉल, यस. आई मेड अ कॉल टू यू एंड आई सेड कि डॉक्टर ये यहाँ पे है, एंड देन यू सेड कि तुम संभाल के इसे ड्रेन पाइप को निकाल देना, पूरा मत निकाल देना। एंड देन आपके इंस्ट्रक्शन के बाद मैंने उसको स्लोली निकाला, एंड देन आई गॉट रेडी एंड आई वेंट फॉर द प्रीमियर एंड ऑल। सो journey was difficult, but it was good with you guys helping me. So, But acha, it is, there's a lot of credit that, goes to you for having gone through the journey, and in spite of going through all that, you were doing your work, you're going for the person that you are, कि आप प्रीमियर के लिए जा रहे हो, बाकी पता अपना काम कर रहे है हो, तो डॉक्टर, ये मेरे साथ पता है मेरे साथ क्या था कि अगर मैं घर पे बैठ जाती ना, मैं डिप्रेस हो जाती। बट ऑफ कोर्स जो मेरे स्टार्टिंग के कीमोस हुए, जो मेजर कीमोस थे, बाद में तो मेरा TDM 1 चल रहा था। सो स्टार्टिंग में आई वाज थ्रू आउट आई वाज एट होम, मैं कुछ नहीं कर पा रही थी। बिकॉज मुझे वैसे भी डॉक्टर वो सेइंग कि तुम घर पे रहो, बिकॉज मेरी इम्यूनिटी बहुत सप्रेस कर देते हैं। आई थिंक देर इज अ मेडिसिन विच दे गिव टू सप्रेस योर, कीमो के पहले कुछ देते हैं। देर इज डेक्सा, दे वर गिविंग मी तो डेक्सा। यस, हाँ, तो कीमो पर से आपका जो काउंट्स है, जो व्हाइट ब्लड सेल काउंट है, उसको कम करता है. हाँ, डेक्सा एक्चुअली आपको थोड़े कीमो के साइड इफेक्ट कम करने के लिए दिया जाता है, यस, बट यस यू आर राइट, इट्स स्टेरॉइड, इट आल्सो डिक्रीजेस द इम्यूनिटी अ लिटिल इम्यूनिटी, बिट. हाँ। बट देन वी आल्सो गिव यू अ इम्यूनिटी बूस्टर. बेसिकली आपका हाँ, जो जैसे मेरा, हाँ, मेरा बोन पहले मैरो को मुझे स्टिमुलेट करने के इम्यूनिटी लिए एक, सप्रेस करते थे। हाँ, मेरी इम्यूनिटी एक दिन पहले सप्रेस करते थे
थर्ड डे मुझे एक इंजेक्शन दिया जाता था मेरा WBC फिर से अप करने के लिए। यस, तो वो जर्नी बहुत मुझे अभी तक याद है, बिकॉज वो हमेशा याद रहेगी। जैसे हम कीमो के लिए जाने वाले रहते थे तो रात को मुझे वो एक डेक्सा लेनी होती थी, ताकि नेक्स्ट डे मेरी इम्यूनिटी अच्छी खासी साइड इफेक्ट्स सप्रेस कम हो आए, जाए हाँ। एंड माई बॉडी इज प्रिपेयर फॉर द कीमो। जैसे ही थोड़ा कीमो 2-3 दिन वर्क करेगा एंड देन डॉक्टर मुजम्मिल यूज्ड टू गिव मी दिस वाइट ब्लड सेल्स का एक इंजेक्शन होता है टू जंप इट अप। आई डोंट नो, नाम मुझे भी याद नहीं आ रहा CGC उसका। is not हाँ, important. Yes, yes. हाँ, सो वो देके जब वो इंजेक्शन लगता था तो मेरी पूरी बॉडी पेन करती थी, बिकॉज इट यूज टू टेक आउट फ्रॉम योर All your बोन्स bone marrow बोन्स gets पेन। stimulated to produce more हाँ, बोन्स में इतना white पेन blood होता cells. था, आई स्टिल रिमेम्बर। सो जो कीमो है, जो मेन कीमो दिया जाता है उस वक्त जो बैंड बजती है, डॉक्टर आई एम टेलिंग यू, किसी की हालत ऊपर वाला ऐसा नहीं देख सकता है, मैं अपने आप को देख नहीं पा रही थी। मगर देयर वर डॉक्टर्स और एक प्रोटोकॉल्स थे जो मुझे फॉलो करने थे। जैसे आज भी मुझे लाइक जब भी मैं कहीं जाती हूँ अगर वायरल इन्फेक्शन है, सो नॉर्मली यू गाइस टेल मी के हमेशा मास्क पहन कर जाओ, बिकॉज मेरा अभी भी थोड़ी सी अप डाउन चलता है एंड आई एम स्टिल नॉट दैट स्ट्रॉन्ग कि मैं किसी का इन्फेक्शन लेकर आ जाऊं। सो एक और प्रॉब्लम हो जाएगी। सो इट्स लाइक दैट। Like I can understand that, but आप बहुत अच्छे से डील कर रहे हो. I'm very happy to हाँ। see this. और लेट्स टॉक अबाउट कीमो के बाद हम हाँ, कीमो के दौरान क्या क्या करना चाहिए, yes. क्या खाना So I think चाहिए, that वो बहुत एक्सरसाइजेस। बहुत बहुत important message है. हाँ, एक्सरसाइज से शुरू करते हैं. हाँ। एक्सरसाइज एक्चुअली तो हमेशा ही करते रहना चाहिए. इन द सेंस, तो देर आर डिफरेंट ग्रुप्स जिन्होंने ब्रेस्ट कैंसर के दौरान और उसके बाद की गई एक्सरसाइज के बारे में स्टडी किया है. यस। एक ग्रुप ने योगा को स्टडी किया एंड दे फाउंड दैट योगा से कीमोथेरेपी के साइड इफेक्ट्स जो होते हैं वो भी थोड़े कम होते हैं अगर आप योगा कर रहे हैं रेगुलरली तो. Yes. एक ग्रुप ने And breathing पिलाट exercise is also very important. Yeah, तो because my lungs डीप were ब्रीदिंग affected at एक्सरसाइज, that point of time. योगा एज इट इज बहुत सारा ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पे बहुत कॉन्सेंट्रेट सारा हो करता जाता है उसमें। है. हाँ। ठीक है. एंड देन समवन वन ग्रुप स्टडीड पिलाटिस जो एक अनदर फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज है. बेसिकली हम ये मानते हैं कि आप कोई भी एक्सरसाइज जो आपको पसंद है आप वो जितना आपका बॉडी कीमो के दौरान अलाउ कर रहा है थोड़ा बस बहुत वो उतना ही करो, जरूर अपने करिए. आप को पुश मत उतना ही करो। करो, अपने आप को ज्यादा पुश मत करो. हाँ। एक बार कीमो खत्म हो गया, आपका सब ट्रीटमेंट ओवर हो गया, व्हेन यू आर बैक टू नॉर्मल, हम्म। then you should by rule do it at least 5 days a week and 40 minutes a day. कोई भी एक एक्सरसाइज आप पिक कीजिए ताकि बॉडी वेट बढ़े नहीं. बॉडी वेट अगर बढ़ता है तो आपका ब्रेस्ट कैंसर वापस आने का चांस, जो रिकरेंस का चांस है, वो भी बढ़ जाता है. इसलिए एक्सरसाइज बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट. अदर देन दैट कीमो के दौरान जो, जैसे आपने बोला कि आपको जब इंजेक्शन लगता था तो WBC कम हो जाते थे. व्हाइट ब्लड सेल का हमारे बॉडी में जो फंक्शन है वो इन्फेक्शन प्रिवेंट करने का फंक्शन, और या वही इन्फेक्शन हम ना कम हो, कर देते थे। वही हम कम कर रहे हैं. वो कम कर रहे नहीं, वो एक्चुअली साइड इफेक्ट है कीमोथेरेपी का. वो सारे एक्टिवली मल्टीप्लाइंग सेल्स को मार रहा है. हाँ, यस। तो व्हाइट ब्लड सेल्स भी एक्टिवली मल्टीप्लाइंग है, वो वापस आ जाते हैं बिकॉज वो हिमेटोपोइटिक है, मतलब वो अपने आप ग्रोथ पोटेंशियल है उनमें वापस आने का, और कैंसर सेल वापस नहीं आ पाता है. पर कुछ लंबे समय तक अगर वो सप्रेस्ड रहे तो इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. इसलिए जब कीमो दौरान जब कोई पेशेंट जा रहा होता है तो हम उनको एडवाइस करते हैं, एक तो आप कोशिश करके बाहर का खाना बिल्कुल भी मत खाइए. जो भी खा रहे हैं वो ताजा बना हुआ, घर का बना हुआ. और जिस समय बना है, फ्रूट्स के लिए भी मना किया था कि अगर बाहर कट फ्रूट है तो उसे तुम ओवन में रख के थोड़ा सा उसको गर्म करके खा लो. एंड यस, और जैसे ही कट किया फ्रेश फ्रूट खाना है आपको. फ्रेश फ्रूट खाना है आपने, और स्पेशली वो फ्रूट खाना है जिसके ऊपर अच्छा एक नेचुरल छिलका है, उसका छिलका उतार के आप अंदर का पल्प खा रहे हैं, जैसे बनाना है या ऑरेंज है. और जो फ्रूट जिसको आप छील नहीं सकते हैं ढंग से, या जिस चीज को आप डायरेक्ट खाना है, क्लीन नहीं, जिसको डायरेक्ट खाना है, जैसे अंगूर है या कोई बेरीज है, वो आप नहीं खाइए, क्योंकि उसके ऊपर अगर बैक्टीरिया कहीं पे जमा हुआ है तो वो आप कुछ भी करके वॉश कर लीजिए, साबुन से तो धोएंगे नहीं उसको खाने से पहले. तो दैट मीन्स देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कोई बैक्टीरिया अंदर जा सकता है. तो यू हैव टू नॉट ईट दोस फ्रूट्स.
सैलेड Yes. भी आप जो खा रहे हैं वो छिलके वाला जो सैलेड है, जिसको आप छील के अच्छे से साफ करके मोटा छिलका निकाल के Hmm. बाकी का सैलेड खा रहे हैं। नॉन वेजिटेरियंस जो खाते हैं उनके लिए भी हम लोग ये एडवाइस करते हैं कि आप जो भी नॉन वेजिटेरियन फूड खा रहे हैं Hmm. वो वेल कुक्ड होना चाहिए। मतलब आप Yes. प्रेशर कुक करके Hmm. चिकन मटन फिश जो भी खा रहे हैं अच्छे से पका हुआ होना चाहिए। उस समय पे रोस्टेड वगैरह जो खाते हैं हम एडवाइस कम करते हैं, क्योंकि रोस्टेड में टेम्परेचर डिफरेंसेस आते हैं। बिल्कुल डीप Yes. मसल में बोन के पास टेम्परेचर अगर उतना हाई नहीं गया तो अगर तो मीट किसी हाँ, तरीके क्योंकि से मेरी इन्फेक्टेड है तो हाँ, आप इन्फेक्शन आप ले सकते हम हैं। So these इन्फेक्शन ले सकते are the हैं। precautions basically we tell. And squeeze juices जो है हम अवॉइड करने के लिए कहते हैं। Yes. उल्टा हम लोग कहते हैं कि आप टेट्रा पैक का जूस पी लीजिए, क्योंकि टेट्रा पैक Yes. का जूस जनरली Yeah. यूवी ट्रीटेड है, उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस कम है। बट यस, उसका न्यूट्रिशनल वैल्यू भी थोड़ा सा कम है, बट टेट्रा पैक का जूस वैसे साफ रहता है, हाँ, तो आप वो पी लेंगे तो मुझे कोई नुकसान मुझे नहीं याद है मैंने 4 या 5 महीने तक सिर्फ टेट्रा है। पैक पिया था। टेट्रा पैक ही है, और वो भी यस। हम लोग एडवाइस करते हैं कि छोटा वाला टेट्रा छोटा पैक लीजिए, ताकि एक बार वाला। पिया और खत्म ठीक है यस, उसके बाद, छोटा वाला। सो दैट यू यस। डोंट प्रिजर्व द टेट्रा पैक एंड गेट इट री हाँ। इन्फेक्टेड अगेन टाइप्स। यस यस So यस। these are the तो precautions we tell you to take during chemotherapy. एक और चीज जो मैं बोलना चाहूंगा कीमोथेरेपी के बारे में, और बहुत लोग इस चीज से डरते भी हैं, यस, कि कीमोथेरेपी स्पेशली जब जो हमारी लेडीज पेशेंट रहती हैं उनको हमारे बाल बहुत बाल चले इंपॉर्टेंट जाते माना हैं। गया यस। है, बाल चले हाँ। जाते हैं। बट अब बाल नहीं जाने के लिए कुछ कीमोथेरेपी के साथ ये पॉसिबल है, कुछ के साथ ये पॉसिबल नहीं है। बाल नहीं जाने के लिए कूलिंग कैप्स अवेलेबल है, हाँ। जो आप यस। कीमो के दौरान पहनते हैं, और उससे हाँ। बाल गिरने का जो प्रोसीजर है वो कम हो जाता है, बहुत कम गिरते हैं। हाँ। कई लोगों को बट पूरा फुल डॉक्टर हेयर ऑफ, आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तब आप मेरे को बहुत लेट मिले हो। एंड आपकी वाली कीमोथेरेपी में ऑलरेडी कुछ तो बाल जा ऐसी चुके थे। अब जा वैसे चुके थे, तो टीसीएचपी में मोस्टली चले ही जाएंगे क्योंकि एग्रेसिव ट्रीटमेंट था, तो आई अग्रेसिव, थिंक मेरा वो कीमो कैप भी काम नहीं चलता, वो जो कूलिंग कैप है। हाँ कूलिंग कैप शायद कम काम करता, हाँ। बट यस अगेन स्पेशली मुझे कुछ मुझे लोगों को शेव एज करना लाइक, पड़ता है। हाँ हाँ, क्योंकि जब मैंने कुछ, डॉक्टर से क्योंकि पूछा था जब व्हेन आई जाता वाज है, हियर। जब हाँ। जब जाता है तो ऐसा पैची लॉस होता है, और पैची यस। लॉस बहुत गंदा दिखता है, सच्ची। तो बेहतर है कि हाँ, शेव कर लो आप उससे अच्छा। शेव कर लो। यस। मैं हाँ, जब मैं डॉक्टर बंदार से मिली थी तो आई वाज आल्सो सेइंग कि डॉक्टर मेरे बाल चले जाएंगे। आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग। सो ही सेड कि बाल जाएंगे तो उसके बारे में क्यों सोचो, ये वापस आने वाली चीज है, ऐसा नहीं है कि एक बार 100%, चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। यस, ऑफ कोर्स 3-4 महीने तक के माय हेड स्किन वाज जस्ट लाइक दिस, बिल्कुल आ ही नहीं रहे थे मुझे बाल, बिकॉज मेरा बहुत एग्रेसिव ट्रीटमेंट था। प्लस मैंने जो आपने आज अभी बात की कि वो जो कूलिंग कैप आता है, सो व्हेन आई आस्क हिम कि क्या ये मेरे पे वर्क करेगा, ही सेड कि अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं बोल सकता कि 100% वर्क करेगा। ऐसा लगता है कि शायद वर्क ना करे, क्योंकि हम फुल ऑन कर रहे हैं तुम्हारे लिए, हम फुल फुल ट्राई कर रहे हैं फुल कि सो थ्रॉटल पे, दैट यू यस कम यस। बैक। हाँ। सो मेरे लिए ऐसा था, व्हेन आई मेट डॉक्टर मुजम्मिल आल्सो, ही वाज सेइंग कि वी आर ट्राइंग अवर एग्रेसिव ट्रीटमेंट करना तुम्हारे पे पक्का है, क्योंकि हम तुम्हें छोड़ नहीं सकते। यू हैव अ हेल्दी बॉडी एंड यू आर एट बिटवीन स्टेज 3 and 4, सो वी हैव टू ट्राई एवरीथिंग। मतलब एक होता है ना, गन मशीन लेके हम खड़े हो गए, पूरा जितना मैक्सिमम तुम्हारी बॉडी में से कैंसर आउट कर सकते। सो फाइनली वी सक्सीडेड ऑल्सो। Yes, इट्स we डेढ़ did. साल हो गए। Yes, डेढ़ yes. साल हो गए एंड टच वुड आई हैव नो रिलैप्स एंड आई एम फीलिंग बेटर डे बाय डे। सो आई फील कि मैं एक एग्जाम्पल हूँ कि ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कि स्टेज 3 स्टेज 4 यहाँ से लोग लौट कर वापस नहीं आते हैं। इफ यू हैव गुड डॉक्टर्स यू कैन डेफिनेटली कम बैक। डॉक्टर आई कांट सी यू। आई थिंक डॉक्टर वापस से गए।